शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्ते सभी को. गुड इवनिंग टू ऑल. I would like to welcome Dr. Manisha Thakare madam from DY Patil in Pune, and our today's topic is related with the food in PCOD, and I would like to welcome all the delegates, all the doctors present over here, and this session is live on the Facebook of Ayush Darpan. So before starting our session, I would like to introduce our today's guest speaker, Dr. Manisha Thakare. Madam is gold medalist, PhD scholar, and she has completed her UG from RT Ayurved College, Akola, PG from Bharati Vidyapeeth Ayurved College, Pune. She has also completed certificate course of RAV under the guidance of Dr. Narendra Gujrati. And it's really a coincidence. Just yesterday now, we had a session on burn care on an occasion of PT Joshi sir's death anniversary. So, Madam is running Ayurved Chikitsalaya and Panchakarma Center in Wakad, Pune. She is also working as an assistant professor in Swastharutta and Yoga department in DY Patil Ayurved, Pimpri, Pune. Madam has presented various papers in national, international journals, and she also got the first prize in paper present at Atacon in teachers category. So it's really great pleasure to listen, Madam, today. So welcome, ma'am, on this platform of on behalf of our family. And today's topic is harmonizing health, exploring Ayurvedic approaches to PCOS management. I think it will be great to listen something about PCOS because it is now recurrent, very trending disease in gynecology. So, ma'am, please, you can continue with your session. Are you going to share a PPT? आप PPT share करने वाले हैं? Unmute करिए मैम. हाँ, yes, I want to share a PPT. Yes, ma'am. You can share now. ओपन आहे डेस्कटॉपला मॅम पीपीटी. I'm not getting, ma'am, how to share. There is a Chrome tab window in entire screen. But एंटायर स्क्रीन कर दीजिए. एंटायर स्क्रीन आपने पीपीटी, हाँ यस पीपीटी, हाँ ओपन करके रखी होगी ना डेस्क. ठीक है, यस. नहीं मैम, स्टॉप करिए, स्टॉप करिए. अभी पीपीटी, हाँ पीपीटी पे जाइए, ओपन करिए. हाँ, उसको फुल स्क्रीन करिए, मैक्सिमाइज करिए. नहीं, अभी अभी बराबर किया था आपने. बैक करिए, अभी बराबर पीपीटी पे क्लिक करिए, आपके पीपीटी पर. हाँ यस यस, अभी उसको मैक्सिम, यस, ओके डन. ओके मैम, स्टार्ट.
आवाज आवाज म्यूट झाले अनम्यूट करा. नाही ते राहू दे तसंच, फक्त तुम्ही माईक वरती क्लिक करा. परत बॅक जा, पीपीटी वर क्लिक करा. मॅक्झिमाइज करा. नाही मॅडम तुम्ही माईकला केलं, बॅक जा. बॅक जा, पीपीटी दिसत नाही आता. पीपीटी वर क्लिक करा. वरती. हा करेक्ट. तोच तो ह्याच्यासारखा आहे ना एरो तो. येस तोच. हा माईकचं तुमच्या समोरच आहे पहा, इथे व्हिडिओ बाजूला आहे पहा, त्याला करा तुम्ही क्लिक. एक मिनिट, आता करा ट्राय. रेड बटन असेल, रेड बटन. नाही ते तिथं काहीच करू नका. पीपीटीला तुम्ही तुमच्या जो व्हिडिओ ऑन केलेला ना, स्टॉप व्हिडिओच्या बाजूला म्यूट म्हणून आहे, त्याच्यावरती क्लिक करा. इकडे तुमच्या लेफ्ट साइडला मॅडम, लेफ्टला एकदम लास्ट लेफ्ट बटन. तिकडे कुठेच काहीच करू नका, ते जस्ट बॅक करा. नाही तुम्ही हे हा ते तसंच राहू दे. आता फक्त तुम्ही लेफ्टला. आता येतोय मॅडम आवाज? येस प्लीज कंटिन्यू. Yes. Thank you. Yes. Good evening, one and all. Myself, Dr. Manisha Thakre. Firstly, I'm thankful to the organizer for giving me this opportunity to address this session. Thank you, ma'am. My topic is harmonizing health, exploring Ayurvedic approaches to PCOS management. We all know the prevalence rate now is 9.13 of PCOS in Indian population, but day by day it will be like pandemic, and it will affect most of the women health. Then polycystic ovary syndrome is a common endocrinopathy found in females of reproductive age group, characterized by atypical menstrual cycle pattern, hormonal disarray, and polycystic ovaries. We hope most of the clinicians have observed these symptoms in ladies nowadays. In PCOS, severe hormonal derangements give rise to the clinical manifestation. Like the symptoms observed in PCOS are amenorrhea or oligomenorrhea, hirsutism, obesity, acanthosis nigricans, and infertility. Main positive factor for this is sedentary lifestyle, lack of exercise, excessive stress and anxiety, which is nowadays is increasing day by day. That stress and anxiety we are suffering from because of workload or because of some family issues, and accompanied with junk food worsen the prognosis of these symptoms. But in Ayurveda, PCOS is not described as a separate heading. It can be portrayed under the headings of various Yoni-Vyapatas, that is genital pathologies, that are explained in most of the Samhitas. And the which also the PCOS can be considered as Artavadushti according to Ayurveda. And PCOD can be correlated with Pushpagni, Jatiharini, Artavakshaya. Most of the Yoni-Vyapatas that can be described under these headings are explained here. And in Ayurvedic classics, mainly in Acharya Kashyapa mentioned PCOS in terms of Pushpagni Reviti, which is mostly the symptoms which are observed and stated by Acharya Kashyapa are can be correlated with PCOS. The Stula Loma Shikanda is the main symptom which is explained only in by Acharya Kashyapa. Okay. And which is the main symptom which can be differential diagnosis for PCOS nowadays. We can see this picture I got from the internet, but I like the most of the जो पिक्चर दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि व्हाट इज पीसीओएस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट नॉर्मल ओवरीज फ्रॉम पीसीओएस ओवरीज, राइट.
Here, the normal ovary, there is mentioned the follicles which are going through the phases, different phases, and in this the phases I have stopped and they are converted into cyst in second ovary, which is on right side. So this picture mainly portray the PCOS symptoms as we are seeing in this picture. Then main syndrome, mostly there are common signs and symptoms which can be observed in PCOS are hair loss, hirsutism, pelvic pain, infertility, overweight, irregular periods, fatigue. Mainly testosterone level is high, and some kind of acne which are observed in PCOS patients. Then we all know, most of the patient came and come and tell us कि I'm suffering from PCOD. I have observed many, बहुत सारी लड़कियां आके बोलती कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, क्योंकि मुझे वो सिम्टम्स है व्हेन दे गॉट डायग्नोज कि उनको पीसीओडी है. बट देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन पीसीओएस एंड पीसीओडी. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसमें कंफ्यूजन करते हैं कि व्हाट इज पीसीओएस एंड व्हाट इज पीसीओडी. इफ कोई स्टूडेंट अगर ये अटेंड कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा चार्ट मिला, तो वो मैंने शेयर किया है. तो मेनली टर्मिनोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखें तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर with diverse symptoms, and in PCOD ovaries containing multiple small small cysts, while the symptom variation occur irregular periods, androgen related issues like acne, hair growth, fertility challenges, and weight gain in PCOS, while in PCOD mainly characterized by irregular periods might not exhibit full PCOS symptoms. And hormonal imbalance, elevated androgens, hormonal imbalance affecting various body symptoms. While in PCOD, focus on ovaries appearance with hormonal imbalance leading to irregular periods. As the symptoms are described here, mostly the PCOD is not as much as challenging to treat, while the PCOS is more challenging for treatment, right? Then severity and impact, generally more complex and impactful due to a broader symptom range. We all know the syndrome is hard to treat, while the disease is easy to treat. But in our Sahitas also, there are some values explained that yapya, kashtasadhya, krichasadhya, we can explain that in that way PCOS also. So regularizing menstrual cycle, addressing associated hormonal issue in PCOD, while long-term health risks are more in PCOS, while the PCOD is not, I have told you earlier that it's not that challenging to treat. Okay. Then Samprapti. We all know main is in Nidan. If in Nidan point of view, if we observe main Nidan 7 is the causative factor in our all the Sahitas explained basically when we take Hetus, mainly that are explained in Sahitas. Nidan 7, which is nowadays is incompatible food eating or fast food or lifestyle challenges, lifestyle changes that are mainly we are facing the issues of that. These Nidan Sevana may change into Agni Mandya, then Amodpatti, and which will turn into Rasadhatu Dushti, and ultimately Rasadhatu Dushti causes Artava Dushti. Rasadhatu Dushti causes Artava Dushti means why? The Rasadhatu, the Upadhatu of Rasa is Artava, and we all know that Artava, Stanya and Artava is the Upadhatu for Rasa. So these Upadhatus are mostly affected if the Rasadhatu get affected. Then because of this, the mala of Rasa, which is kapha, and अगर कफ अगर अफेक्ट होता है तो उसमें अग्निमांद्य या हेतु के बाद जो मेदो धातु वृद्धि और मेदो धातु अग्निमांद्य वो जो लक्षण दिखते हैं उसका ही कन्वर्जन, उसका ही मैनिफेस्टेशन होता है पीसीओएस में. Then causative factors and etiopathogenesis for PCOS according to modern science. तो मेनली उन लोगों ने बोला है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, गट डिसबायोसिस मींस अपने इसमें जो बोला है अग्निमांद्य, वही यहाँ पे आमोदपत्ति और अग्निमांद्य उन्होंने भी कंसिडर किया है, लेकिन उनकी लैंग्वेज है गट डिसबायोसिस. देन डाइट एंड लाइफस्टाइल, विच इज द चैलेंजिंग इशू फॉर टुडेज लाइफस्टाइल. देन all these
causative factors convert into hormonal imbalance, hyperandrogenism एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. आप लोगों ने देखा भी होगा जो पीसीओडी के पेशेंट है उनमें मेनली हम लोगों को डार्कनिंग ऑफ स्किन दिखाई देती है, मेनली अंडर आर्मपिट में वहां पे ब्लैकिश हम लोगों को दिखता है, और उसी वही इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे पहला और मेन साइन है. अगर हम लोग उसको पहले ट्रीट कर दे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा पीसीओएस में, राइट. तो हम लोगों को पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, पेशेंट अगर पहली बार विजिट करता है तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. मेनली कॉस्मेटिक पर्पज से हमारे पास पेशेंट आता है कि मेरे जो आर्मपिट है वो ब्लैक हो गए हैं, और अगर हम लोग वो कंसिडर करेंगे तो हम लोग इजीली पीसीओएस को फर्दर कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए पहले ही ट्रीट कर सकते हैं. देन यहाँ पे जो आपने देख हार्मोनल इम्बैलेंस में मेनली एलएच एंड एफएसएच रेशियो जो बढ़ा हुआ रहता है, मोर देन 3 रहता है, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीशन कम होगा. देन टेस्टोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग gluten is reduced in hyperandrogenism. Then glucose tolerance mainly seen in this. Then all the PCOS converts into these, all the symptoms that are observed in PCOS patient got converted into mainly the clinical features we are seeing in PCOS patient are hirsutism, acne. Then reproductive features mainly infertility we are seeing nowadays, and which is challenging for most of the not only gynecologists but also for Ayurvedic physician. Then metabolic feature, risk of metabolic disorders are increased, which will be we can be considered as a complication or upadrava. In terms of upadrava we can manifest the metabolic features. Then criteria for diagnosis, मेनली पेशेंट अपने पास पूरा डायग्नोसिस लेके आता है आयुर्वेद के पास. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि हमारे आने के बाद डायग्नोस होते हैं. मैंने जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है तो मोस्टली मेरे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेके तीन आईयूआई के सेटिंग करके आईवीएफ करके आए हुए पेशेंट मेरे पास आए थे. उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरे पास रेडीमेड ही पेशेंट आए. लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए मेन यूएसजी जो सबसे इजीली अवेलेबल फॉर्म है. और लेकिन ऐसा भी होता है कि यूएसजी में पीसीओएस या पीसीओडी का डायग्नोसिस नहीं हो सकता. तब हम लोग सिम्टम है लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, यूएसजी में नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को ऊपर के जो मैंने 3 क्राइटेरिया मेंशन किए हैं, मेनली ओलिगोमिनोरिया, और इनमें से एटलीस्ट 3 प्रेजेंट होने चाहिए. तो वही 3, पहला ओलिगोमिनोरिया और अनओव्यूलेशन, क्लिनिकली और बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ hyperandrogenism, then elevated LH luteinizing hormone, and the ratio of LH and FHS should be greater than 3. तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास यूएसजी की रिपोर्ट रिलायबल नहीं मिली, या फिर हम लोगों को क्लिनिकली हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन बाकी हमारे पास यूएसजी का रिपोर्ट जो है उसमें नहीं दिख रहा है. तो ये बाकी की इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग करते हैं तो डायग्नोसिस कंफर्म होगा. Then what are the complications in terms of Ayurveda? It maybe we can correlate it with like upadrava of some Vadis. Like जैसे मेन है टाइप 2 डायबिटीज. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट पीसीओडी? द मेन रीजन आर दीज कॉम्प्लिकेशन विच आई एक्सप्लेन हियर. पहला तो है टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रोन होता है वो पेशेंट. देन हाई ब्लड प्रेशर, देन अनहेल्दी कोलेस्टेरॉल, देन स्लीप एपनिया मेनली ऑब्जर्व उसमें दिखाई देता है. देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो तो हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी मेनली पीसीओएस के पेशेंट में आप लोग देख सकते हो. देन इनफर्टिलिटी मेनली एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड देन एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है इफ long-term PCOS patient remain untreated. मॉडर्न मेडिसिन में उनके लिए ट्रीटमेंट है तो साइक्लिकल पिल्स, वो हम सबको मालूम है कि 3 महीने के लिए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दिया जाता है, और वो 3 महीने के लिए टैबलेट लेने के बाद पेशेंट का जो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो देखा है उसमें वो पीसीओएस बढ़ा है ना कि कम हुआ है. तो साइक्लिकल पिल्स आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि हम लोग बाहर से अगर कुछ हार्मोनल पिल्स दे रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ही करेगा साइकिल, वो नॉर्मलाइज नहीं करता है. ठीक है. और ओवुलेशन तो होता ही नहीं है. मैंने ये पूरा 3 महीने साइक्लिकल पिल लिए हुए पेशेंट देखे हैं और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लेके मेरे पास आए हैं. देन मेटफॉर्मिन, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेन डायबिटिक कुछ कोरिलेशन लगा के उन लोगों ने मेटफॉर्मिन या ड्रग उसके लिए यूज करते हैं. देन क्लोमिफेन साइट्रेट और लैट्रोज, हम नाउअडेज लैट्रोज इज मोस्टली यूज फॉर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर इंड्यूसिंग ओवुलेशन.
राइट। तो क्लोमिफेन साइट्रेट पहले यूज होता था, अभी लेट्रोज यूज होता है, उसमें भी वो लोग ओवुलेशन के लिए मेनली, इंडक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेनली ओवरीज की हेल्थ देखी नहीं जाती, वो कंसिडर किया नहीं जाता, ओवुलेशन होना चाहिए, वो हेल्दी है अनहेल्दी है, बीज शुद्ध है प्रॉपर है, वो देखा नहीं जाता। तो इसमें बहुत सारे लैक्यूनाज है ये ट्रीटमेंट में। सो इट इज बेटर टू अवॉइड एलोपैथी ट्रीटमेंट फॉर मेनली पीसीओएस। Yeah, there is a solution in Ayurveda. Ayurveda can help solve your PCOS trouble. Yeah. Then treatment. Skillful combination of Ayurvedic medications, Ayurvedic Panchakarma, lifestyle changes, dietary modification, yoga, and exercise. We can treat PCOS with confidence, but the treatment near about 6 month तक last चलेगा। 3 to 6 month आप लोग पीसीओएस से पीसीओडी नील कर सकते हो अगर आप ट्राई करो तो। द मेडिकेशंस मेनली हम लोग आयुर्वेद में एज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आई इंक्लूडेड दिस पॉइंट्स, बट मेनली फोकस मेरा योगा और डाइट पे रहेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे मेडिकेशंस डाले हुए हैं। सबसे मेन निदान परिवर्जन हमारे यहाँ पे अर्ध चिकित्सा आयुर्वेद में बोली गई है कि हम लोगों ने निदान जो पॉजिटिव फैक्टर है, अभी पॉजिटिव फैक्टर मेनली मैंने जैसे बोला कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हम लोग आहार लेते हैं उसमें इनकम्पेटिबल फूड मेन है, जैसे मेयोनीज। नाउअडेज पीपल आर कंज्यूमिंग टन्स ऑफ मेयोनीज, एंड I have observed that in super shoppies and stores that बहुत लोगों की ट्रॉलीज में मेयोनीज, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स ये सब पड़ा हुआ रहता है और वो लोग उतना कंज्यूम करते हैं। तो ऑब्वियस है पीसीओएस मोर देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मेनली उसमें ट्रीटमेंट वही निदान परिवर्जन, उनका जो डाइट है वो आपको प्लान करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। और उसमें भी हम लोगों को दोष धातु मल मेनली प्रकृति वो देख के हम लोगों को उसका डाइट मैनेज करना पड़ेगा, वो आगे आएगा। देन आम पाचन एंड अग्निवर्धन इज द फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट हम लोगों को अगर कुछ करना है तो वो आम पाचन है और अग्निवर्धन, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बोला स्टार्टिंग में ही मैंने जो संप्राप्ति एक्सप्लेन की, तो आमोत्पत्ति, आम अगर उत्पन्न होता है तो वो आम का हम लोग अगर पाचन करेंगे और उसी आम की वजह से अवरोध जो पीसीओएस में हम लोगों को दिखता है, क्योंकि क्या होता है 3 महीने 4 महीने हो गए, पेशेंट बोलता है कि मुझे मेंसेस नहीं आए हैं मेनली। और अगर आप यूएसजी करो तो एंडोमेट्रियल थिकनेस प्रॉपर रहती है बट मेंसेस नहीं दिखते। तो रीजन क्या है? क्षय नहीं है, वहां पे अवरोध है मेनली। और वो अवरोध अगर हम लोग पहले अवरोध दूर करने के लिए हम लोगों को उष्ण तीक्ष्ण और वो आम पाचन और वहां पे अग्निवर्धन करना आवश्यक रहेगा। उसमें त्रिकटु चूर्ण, चित्रकादि गुटिका, षडूषण चूर्ण, या फिर सबसे मेन और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया गया प्रिपरेशन मीन्स रसपाचक, इंद्रिय पटोल कुटकी। कुटकी भेदन करता है, अवरोध को दूर करता है, इसलिए मेनली रसपाचक में यूज करती हूँ। देन अपान वातानुलोमन, ये सबसे मैंने कि वो अपान क्षेत्र है और वहां पे ही अवरोध है। अवरोध जो हमारा मल बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो मेनली अपान वायु करता है, वो अगर बैलेंस नहीं होगा तो सभी प्रॉब्लम आएंगे। मोस्टली पीसीओएस के पेशेंट में आपको कॉन्स्टिपेशन दिखता ही दिखता है, तो उनमें आप लोग हरित की चूर्ण और ये सब मैंने डग इन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिखे हैं। आपको प्रकृति वाइज पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, वो आपको खुद अपना मीन्स आपकी जो बुद्धि है वो यूज करके आपको यहाँ पे सभी ड्रग्स यूज कर सकते हो आप। उसमें भी आपको प्रकृति का मेन ख्याल रखना होगा पेशेंट की, उसको क्या सूट होता है। पित्त प्रकृति है तो क्या दे सकते हैं, अगर क्योंकि पित्त प्रकृति में अगर मैं उष्ण तीक्ष्ण दवाई ज्यादा यूज करूंगी, मेडिसिन ज्यादा यूज करूंगी, तो पेशेंट अलग सिम्टम लेके आएगा और वो फिर ट्रीट करने के लिए आपको उतना ही कठिन जाएगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस मेनली कांचना गुड़, कुबेराक्षवटी, पुष्पधनवारस, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी। मेनली जो उन्होंने मेटफॉर्मिन जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चंद्रप्रभावटी एक्यूरेट जाएगी, आरोग्यवर्धिनी एक्यूरेट जाएगी। आरोग्यवर्धिनी में जो कुटकी है वो मेनली जो सिस्ट फॉर्म हुए हैं उनका भेदन करेंगी और चंद्रप्रभावटी वही स्त्रोतोरोध दूर करेगी।
देन टंकन भस्म यूज किया जाता है, वो मोस्टली सिस्ट जो है उनको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो लेखन कर्म करेगा। देन शतावरी अमृता मैं कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ, टंकन भस्म प्लस शतावरी प्लस अमृता। देन पुनर्नवा वो मेनली हार्मोन पे जाएगा, और इन्फ्लेमेशन यह रहता ही रहता है पीसीओएस में, तो वो इन्फ्लेमेशन और हार्मोन्स ये सब बैलेंस करने के लिए हमारे जो पुनर्नवा है, पुनर्नवा नाम में ही है, मीन्स रिजुविनेशन करेगा, तो वहां पे हम रिजुविनेशन के लिए और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए पुनर्नवा यूज कर सकते हैं। देन शतपुष्पा वो मेनली ओवुलेशन के लिए दिया जाएगा। देन शिवलिंगी बीज हम सबको पता है उसका आकार ही शिवलिंग का जैसा है, लेकिन ये उष्ण रहता है, तो जहां पे मैं प्रेगनेंसी का विचार करती हूँ तो वहां पे मैं 14 डेज तक की ही शिवलिंगी बीज देती हूँ। ठीक है, तो शिवलिंगी बीज मेनली हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इनफर्टिलिटी की पेशेंट है तो। देन सुकुमार कषाय, कुमारी आसव, वरुणादि क्वाथ, हम लोग का अब दशमूलारिष्ट आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे थोड़ा दिमाग लगा के क्या बोलते हैं उसको, युक्ति, यस युक्ति यूज करके आप लोग वो यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स कंडीशंस, योर पेशेंट्स प्रकृति एंड दोष धातु मल। देन पंचकर्म ट्रीटमेंट, द मेन part is वमन कर्म. It is, we all know that it is indicated for kapha disorders, and in PCOS there is a विशेषण of kapha, as the रस का जो मल है वो कफ है, इसलिए कफ जो है वो ही अवरोध उत्पन्न करता है, और यही कफ सौम्य है गुणधर्म में, इसलिए अगर आपको कफ का जो अवरोध है वो निकालना है तो मेनली हम लोग कफ का एलिवेशन करने के कफ को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को मेनली वमन कर्म इंडिकेशन में दिया गया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें रिजल्ट भी आए हैं। मेरे आई थिंक अभी तक मैंने एक कलीग को दिए थे, उनका थीसिस था वमन कर्म पीसीओएस पे, तो उनको इतने अच्छे रिजल्ट आए, और मैंने उनको 4 पेशेंट दिए थे, चारों के चारों में एक्सेलेंट रिजल्ट आए। तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसार मैंने पहले भी बोला कि आप लोगों को सत्व देखना है, कौन पेशेंट विलिंग है, हर कोई पेशेंट वमन के लिए विलिंग नहीं होता है, तो आपको सत्व देख के आप उसको इंडिकेशन में दे सकते हो। देन बस्ती एज वी ऑल नो, बस्ती मेनली पक्वाशय और अपानवात पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अग्निमांद्य तो है ही, अपान का जो है वो डीअरेंजमेंट तो है ही, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो वातानुलोमन और अपानवात का नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, रज प्रवृत्ति के लिए मेनली बस्ती हम लोग देते हैं। उसमें भी दशमूल निरूह, धानवंतर तेल मात्रा बस्ती, लशुनादि तेल मात्रा बस्ती आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। देन उत्तर बस्ती मेनली इंडिकेटेड है, इट शुड बी गिवन इन मैरिड पेशेंट, अनमैरिड में हम लोग उत्तर बस्ती नहीं दे सकते, तो उसमें धानवंतर तेल जो सभी योनि रोगों पर बताया गया है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर शतवादी तेल वो वाग्भट में एक्सप्लेन है, तो वो आप दे सकते हो, उसकी उत्तर बस्ती दे सकते हो। मेनली जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं उनमें ये सब यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ओव्यूलेशन और मेनली उष्ण तीक्ष्ण इस टाइप के ड्रग्स अगर आप यूज करोगे जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो इजी जाएगा आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए। देन प्रतिमर्शनस्य, मैंने कहीं पे लिटरेचर नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद जब एक्सपीरियंस किया कि मेनली पीसीओएस का जो रीजन है वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नाउअडेज हम लोग क्या देखते हैं कि पहले लेडीज जो थी वो घर पे रहती थी, उनको ये काम नहीं था, नाउ शी इज मैनेजिंग घर, जॉब, बच्चे, घर का सब मैनेज करते हैं, तो उनमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से पीसीओएस का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। लड़कियों में भी उसी की वजह से, और लाइफस्टाइल जो खाने के उनके जो हम लोग फास्ट फूड अभी जो कंजम्पशन बढ़ गया है उसकी वजह से, और स्ट्रेस और एंजाइटी, जैसे पहले लेडीज नहीं निकलती थी घर के बाहर, अभी वो सब मैनेज करती है, तो वो एक अलग स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी पीसीओएस का वो एक मेन रीजन हो सकता है। इसलिए मैं उसमें अनुतेल, और वो मेनली पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, और वहां से जो सिक्रीशंस होते हैं, तो उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका अगर हम लोग विचार करेंगे, उनको अगर बैलेंस करना है, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है, वही सबको डायरेक्शन देती है ग्लैंड कि आप ये ओवरीज को बोलेंगे जैसे ये प्रोडक्शन करो, ये पूरी होल बॉडी को अगर गवर्न करती है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसलिए अनुतेल नस्य मैं उसमें यूज करती हूँ। आपको पेशेंट के वाइज, आप पेशेंट जिस तरह से रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो। मेनली अनुतेल जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर करता है और स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉर्मलाइज होने के लिए।
Then there is one diet chart I have designed for my clinic, solely for my clinic, and I have got excellent result in the by giving this diet chart or administering this diet chart to the patient. Mainly मैंने उसमें वही कि good dietary choices should be there, eating at regular interval, getting adequate exercise, yoga, meditation, 7 to 8 hours sleep, early to bed, early to rise, and one more most important thing is 1 teaspoon of cow ghee in every meal. Rather, I will correct it, before every meal, because it goes to, वो जाता है मेनली अपान की तरफ. तो अपान वायु का जो डीअरेंजमेंट है, या उनमें जो कॉन्स्टिपेशन भी दिखता है, अवरोध भी दिखता है, तो वो घी जो करता है, घी अगर वो लेते हैं खाने से पहले, तो वो मेनली अपान का डीअरेंजमेंट कम कर देगा. तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है पेशेंट, अगर आप उसको खाने से पहले 2 चम्मच घी लेने के लिए बोलेंगे. वही अगर आप यूरिनरी कैल्कुलाई में भी देखोगे तो हम लोग यही देखते हैं. तो ऑब्वियस है कि कैल्कुलाई नया फॉर्म नहीं होते हैं, और वही मैं पीसीओडी में पेशेंट को देती हूँ, तो मुझे एक्सलेंट रिजल्ट उसके दिखाई देते हैं. देन मेनली रॉक साल्ट इंस्टेड ऑफ सी साल्ट, ये तो हम लोग सभी पेशेंट को बोलते हैं. देन मेन नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स should be kept away. Then stress and painful experiences should be avoided. Then क्या अवॉइड करना है, तो अल्कोहल, शुगर, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये उनको अवॉइड करना है. देन प्रोसेस कैंड एंड रिफाइंड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, बटर एंड चीज, देन डीप फ्राइड फूड आइटम्स एंड साल्टेड नट्स. तो हम लोग देखते हैं अभी जंक फूड एंड फास्ट फूड, जंक और फास्ट फूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और वो दोनों भी हमारे यहाँ पे खाए जाते हैं. तो वो क्या डिफरेंस है, वो स्टूडेंट को खुद समझने के लिए थोड़ा ढूंढना, वो मैं टीचर हूँ इसलिए मैं बोलूंगी कि स्टूडेंट ने खुद ढूंढना है उसका डिफरेंस, अगर स्टूडेंट ज्वाइन हो गए यहाँ पे, तो जंक एंड फास्ट फूड में क्या डिफरेंस है. ठीक है. देन मेरा क्लिनिक का जो डाइट चार्ट है, ये अगर ये मैंने जिनको भी दिया, तो विद इन 1 मंथ नियर अबाउट 5 kg वेट आराम से लॉस हुआ है. तो ये जो मेरा डाइट चार्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं पर्सनली भी अगर कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको दूंगी. हाँ, मैंने यहाँ पे ओट्स लिखे हैं कहीं पे. तो ओट्स क्या होता है, अभी जो डाइट चार्ट हम लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स हम लोग उनका बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते. उनके अकॉर्डिंग टू उनके जॉब, उनका एजुकेशन, उनका जो बाकी टाइमिंग है, जैसे अभी स्टूडेंट अगर देखोगे तो उनका जो कॉलेज का टाइमिंग है, ये सब मैनेज करके हम लोगों को उनके डाइट उसके अकॉर्डिंग ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी पड़ती है. तो इसमें वो बोलेगा कि मेरे पास इजीली अवेलेबल जो बातें हैं, जैसे रेडी टू ईट ओट्स है, तो वो खा सकते हैं. तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान बनाना पड़ेगा. लेकिन ये जो मैंने जितने भी दिए हैं वो ऑप्शन में दिए हैं, कि रोज एक नहीं खाना है, अलग अलग तरीके से. जैसे 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर विद जीरा एक दिन लेना है, एक दिन वही वार्म वाटर अजवाइन का लेना है, कभी मिंट का लेना है, कभी तुलसी का लेना है. वहां पे लेमन जूस भी मेंशन किया है, लेकिन लेमन जूस ये रोज लेने वाली चीज नहीं. अगर आप लोग रोज लोगे तो वो अस्थिक्षय का कारण बनता है. तो आपको अल्टरनेट, जैसे 7 डेज का 7 ड्रिंक आपको तैयार करने होंगे. 8 AM को जो नाश्ता रहेगा, उसमें ब्रेकफास्ट में आप लोगों को मेनली जो भी आप सोप, जो भी उसड़ यूज करोगे, तो वो मेनली जितने भी ग्रेन्स आप यूज करोगे वो स्प्राउटेड नहीं होने चाहिए. स्प्राउट हमारे आयुर्वेद में निषिद्ध बताया है, और वो मेनली रक्त दुष्टिका और आंखों के लिए भी हानिकारक होता है, रक्त दृष्टि का एक कारण है. तो वो अवॉइड करना है आपको. बस सोप्ड मूंग उसड़, मटकी उसड़ वो खा सकते हैं. देन लंच में जवार रोटी मेनली, मैंने दोनों भी लंच और डिनर में दोनों इसमें गेहूं की रोटी जो है वो स्किप की है. वो बेटर है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसमें ग्लूटेन नाउडेज एक नया, लेकिन सच बात है भी कि जिन लोगों में ग्लूटेन, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो हम लोगों को ग्लूटेन अवॉइड करना है. तो वो ग्लूटेन मेनली हमारी गेहूं की रोटी में मिलता है. इसलिए अगर वेट लॉस करना है, मेनली पीसीओएस के पेशेंट में हम लोगों को वेट लॉस के हिसाब से ही हम लोग सब सोचेंगे, तो उसमें जवार रोटी, नाचनी रोटी या फिर यव बार्ले, वो सबसे बेस्ट रहेगी. दाल में भी मूंग की दाल बेस्ट रहेगी. और सीजनल वेजिटेबल्स में भी हम लोग फ्रूट वेजिटेबल मेनली कंसिडर करेंगे. लीफी वेजिटेबल शुड बी अवॉइडेड, वो भी रक्त दुष्टि का एक कारण है. तो हम लोग वेजिटेबल्स में मेनली लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे. देन इवनिंग स्नैक्स बहुत लोगों का रहता है कि मुझे 6 से 7 4 बजे कुछ तो भी खाना है, तो उस टाइम पे हम लोग रोस्टेड मेनली बता सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस में मेनली कफ वृद्धि
देन हम लोग अगर महाभूतों का विचार करें तो वहां पे मेनली जल महाभूत वो बढ़ा हुआ, पृथ्वी और जल महाभूत बढ़ा हुआ है, तो वो कम करने के लिए हम लोगों को रोस्टेड जो आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य है वो यूज करने हैं। और उनमें भी क्योंकि अवकाश आकाश अवरोध है, और अवरोध कब की वजह से है, तो ये जो अवरोध है वहां पे हम लोगों को पृथ्वी और जल महाभूत को कंसिडर अगर करेंगे तो वो वहां पे हम लोगों को आकाश महाभूत चाहिए। अगर वो चाहिए तो हम लोगों को आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य यूज करने हैं, तो उनमें भी हम लोग रोस्टेड चना, देन लाह्या का सभी प्रकार के लाह्या हम लोग यूज कर सकते हैं, और बटर मिल्क हम लोग बता सकते हैं। लेकिन ये सब भी मैं बोल रही हूँ कि रोज एक ही तरह का ना लेके रोज अल्टरनेट चेंज करते हुए उनको ये इवनिंग स्नैक 4 बजे का लेना है। देन डिनर शुड बी 7 बजे ही खाना खाना चाहिए। वो सभी के लिए है, वो एसेंशियल इसलिए भी है, मैंने जैसे बोला कि जो पिंडिते ब्रह्मांडी ने वो जो बताया कि जब सूरज उगता है वैसे हमारे बॉडी में भी, जैसे सृष्टि में चयापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी चयापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। अगर 7 बजे सूरज चला जाता है, डूबता है, सनसेट अगर होता है, तो हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में भी मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को 7 बजे अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होगा। अदरवाइज आप जितना लेट खाना खाओगे उतना वो पड़ा हुआ रहेगा, और आमोदपत्ति के लिए सबसे मेन कारण रहेगा। और बेड टाइम दैट इज 9 PM। बहुत लोग बोलते हैं कि 7 बजे अगर मैं खाना खाऊं तो मुझे फिर से भूख लगती है, तो ये कुछ दिनों तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग उनको लाह्या, चना, पॉपकॉर्न ये बोलेंगे और धीरे धीरे उनको उसकी आदत सी बन जाएगी, तो एक्यूरेट 7 PM को उनको भूख लगेगी और वो वहां पे ही वही उसी टाइम पे खाना खाएंगे। और स्लीप वो 10 PM को बोली है, और वही क्योंकि खाना और सोने 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। वैसे ही मैं पानी का सजेशन देती हूँ। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा पानी पीने से स्किन अच्छी होती है, लड़कियों के लिए बहुत वो मायने रखता है कि स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपको फिल्टर करना पड़ेगा बॉडी को, अगर नहीं कर सकते तो उतना रिटेंशन होगा। और वाटर रिटेंशन की वजह से जो स्किन बोलते हैं ना बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो सब मिथ्या है। आपको लगता है कि वो स्किन अच्छी हो गई, लेकिन अगर वाटर रिटेंशन है तो वो बाकी डिसीजेस के लिए कारणीभूत रहेगा। तो पानी जो है वो खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद पीना है, खाने के बीच में कम से कम पानी पीना है, हाफ ग्लास सफिशियंट है, और खाना खाने के बाद आधा पौन घंटा पानी पीना है। और दिन भर भी जो पानी पीना है वो घुट घुट करके पीना है, एक साथ बहुत सारा पानी कभी नहीं पीना है। पानी बैठ के पीना चाहिए, हमारे पुराने लोग जो बोलते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए। देन योगा मॉड्यूल फॉर पीसीओएस, ये सबसे मेन टॉपिक है। और नाउडेज मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो योगा पे भी अगर हमने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया तो हम लोग बहुत सारे सिम्टम कम कर सकते हैं पीसीओएस के। मेरी तो एक पेशेंट थी कि उसको मैंने सिर्फ पीसी वो आई काउंसलिंग के लिए कि 3 IUI फेल गए, तो मैंने बस उसको काउंसलिंग की और योगा करने के लिए बोला। वो 1.5 महीने बाद डायरेक्ट आई और वो बोली कि मैं कंसीव हो गई। मैंने उसको एक भी मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो जो विशियस साइकिल में इनफर्टिलिटी के कपल आते हैं उसके लिए भी योगा बेस्ट ऑप्शन है। तो योगा कैन बी बेनिफिशियल एंड होलिस्टिक अप्रोच फॉर मैनेजिंग पीसीओएस। Incorporating yoga into routine may help elevate symptoms, reduce stress and promote overall well-being। क्योंकि एक्सरसाइज जो रहती है उसमें हम लोग मेंटल हेल्थ का, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कंसिडरेशन नहीं होता। जो हम लोग जिम की एक्सरसाइज, हर एक बार पेशेंट आके बोलता है कि मैं जिम में एक्सरसाइज करती हूँ, इतने घंटे करती हूँ, उतने घंटे, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि क्या होता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रमाण में, तो वो हम लोगों को लिथार्जी या फिर एनर्जी लॉस ही देगा या फिर वाद बढ़ाएगा, और वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेटर वे हम लोग अगर योगा करेंगे, तो अगर आपने योगा करके खुद अनुभव किया होगा तो मेंटल हेल्थ के लिए, अगर हम एंजाइटी और वो जो मेन एक कारण है पीसीओएस का, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो उसमें मेनली कौन कौन से आसनास पेशेंट को आप लोग बता सकते हो, तो मेनली भुजंगासन, कोबरा पोज, it strengthens the spine and abdominal muscles, stimulates the reproductive organ and helping in hormonal regulation। वही धनुरासन बताया गया है, वो डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी मसाज करेगा। और it also stimulates the reproductive organs and helps in managing PCOS symptoms।
देन उष्ट्रासन है, स्ट्रेचेस द फ्रंट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द एब्डोमेन एंड मे हेल्प इन इंप्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने जो कुछ भी यहाँ पे मैंने आसना दी है वो मेनली एब्डोमिनल मसल पे काम करते हैं, पेल्विक रीजन पे काम करते हैं, तो ऑब्वियस है वहां का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो इन आसना से ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो वहां पे जो अवरोध है वो भी कम हो जाएगा। देन पश्चिमोत्तानासन stretches the lower back, hamstrings, hips, stimulates the uterus and ovaries and relieves stress also. Then Hastapadasana, standing forward bend, stretches the back muscle, improves blood supply to the nervous system and pelvic region, makes the spine more flexible, relieves stress from the abdominal region. Then Baddha Konasana, butterfly pose, stretches the inner thighs, grants, knees, improves flexibility in the groin and hip region. देन विपरीत करनी एज हम लोग जो देख रहे हैं, हेल्प्स रिलीव बैकएक, इंप्रूव्स फ्लो ऑफ ब्लड टू द पेल्विक रीजन। देन शवासना, ये मेनली एंजाइटी रिलीव करने के लिए हम लोग शवासन पेशेंट को बता सकते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। देन सूर्य नमस्कार, ये सबसे मेन पार्ट है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम लोगों को पता तो है, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से करते नहीं, और अगर करते भी है तो वो जितने होने चाहिए उतने किए जाते नहीं, और रेगुलरिटी भी नहीं रहती। लेकिन अगर हम लोग जो चक्र का विचार करेंगे, छठे चक्र अगर हम लोग कंसिडर करते हैं सूर्य नमस्कार करते वक्त, तो वो सभी जो चक्र है वो मेनली हमारी एंडोक्राइन सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो मेनली हम लोग अगर देखेंगे तो पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, वो अगर हम लोग कंसिडर करें तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस में हम लोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो मेन, और वो स्ट्रेस और एंजाइटी तो रिलीव करता ही करता है। देन नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये मेनली शुद्धि क्रिया में आएगी, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक, ये हम सबको पता है और हम लोग करते भी है डेली, बहुत लोग करते हैं। अगर पीसीओएस के पेशेंट में किया गया तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करेगा। देन ऑक्सीजन फ्लो अगर बढ़ाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इससे बहुत अच्छे से कम किया जाता है। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी आपको फायदा आएगा। देन भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जो कि एंगर, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बताया गया है, वो भी अगर प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन मेडिटेशन, by turning your attention away from distracting thoughts and focusing on the present moment, meditation has been shown to improve self compassion. This will have a पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो मेडिटेशन जो है वो अगर किया जाएगा तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, वो उसमें भी मेनली अगर हम देखेंगे तो पीसीओएस में बहुत अच्छे से मेडिटेशन का भी रोल देखा गया है। देन ये सब तो हो गया, लेकिन मुझे अगर होलिस्टिक अप्रोच में सभी बातें अगर देखेंगे तो मुझे एक रेफरेंस मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा वो आर्टिकल, वो एडजुवेंट सीड साइक्लिंग थेरेपी, और ये मैंने फिर पेशेंट में ट्राई किया तो इसके भी एक्सेलेंट रिजल्ट दिखे। मेनली हम लोग अभी देख रहे हैं कि नाउ डेज बहुत सारे फ्रूट्स में जो है वो बीज नहीं होते, राइट। हाइब्रिड फ्रूट्स जितने देखे हमने अभी, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स में बीज नहीं होते, तो ऑब्वियस है वो सीड का प्रोडक्शन कैसे करेगा। अगर मैं फ्रूट खाऊंगी तो मुझ में अगर सीड तैयार होने हैं तो मुझे सीड वाला ही फ्रूट चाहिए, और सीडलेस का अभी बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है। हर एक फ्रूट को हम लोग सीडलेस करने की सोचते हैं, तो इसी को कंसिडर करके एक स्टडी हुआ है, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है। ये लिंक अगर आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे मेनली जो 1 to 14 डेज जो फॉलिकुलर फेज है उसमें फ्लक्स सीड और पंपकिन सीड अल्टरनेट डे यूज किया है, डेली दिया है। जैसे अल्टरनेट डे नहीं, डेली दिया है, 1 टेबलस्पून डेली एंड 1 टेबलस्पून डेली, ये दोनों भी सीड्स, उसमें फ्लक्स सीड एंड पंपकिन सीड। अगर हम लोग इन सीड का भी सभी सीड अगर देखेंगे तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा प्रमाण में रहता है, और इन्फ्लेमेशन भी वो कम करता है, और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ओवुलेशन में वो हेल्प करता है। और सीड साइकिल देन फ्रॉम 15 to 28 डेज ल्यूटियल फेज में उन्होंने सनफ्लावर सीड्स एंड सीसम सीड्स बोला है। तो ये आप अगर रिसर्च देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे से एविडेंस के साथ उन्होंने प्रूव किया है कि ये ओवुलेशन जो अभी मेन कंसिडर हम लोग सोचते हैं कि ओवुलेशन नहीं दिख रहा है लेडीज में, तो ये सीड साइकिल अगर उन्होंने फॉलो किया तो ये दिखता है। और ये मैंने मेरे पेशेंट में ट्राई भी किया है। मैंने जैसे उनको यहाँ पे जो साइकिल दिया है वैसे ही बताया है, ऐसे नहीं, लेकिन रोज उनको मुखवास के जैसा खाने के लिए बोला तो भी उनका ओवुलेशन में इंडक्शन हुआ है। देन सम रिपोर्ट्स,
वो जो मैंने जो पेशेंट ट्रीट किए हैं उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो आप देख सकते हो। ये जो पेशेंट थी प्रेरणा कुमारी करके, पेशेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, और मुझे उतना टाइम नहीं था वो कट करने के लिए, इसलिए वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेरणा कुमारी एक पेशेंट थी मेरी, और वो आईवीएफ उसका हुआ है पहले, एक बेटी है, और आईवीएफ भी इसी की वजह से हुआ है, लेकिन वो अब अभी अप्रोच हुई मेरे पास, और मैंने उसको कुछ 3 महीने दवाई दी। वो मेरे पास रिपोर्ट लेके आई थी, और मैंने उसको 3 महीने दवाई दी। 3 महीने के बाद का जो रिपोर्ट मीन्स जब आई थी तो ये रिपोर्ट लेके आई, लेकिन वो पहले का रिपोर्ट था। 3 महीने के बाद उसको पीसीओएस के सिम्टम वो पूरी तरीके से निकल गए थे। देन सेम पेशेंट है, ये षष्ठी गुगाने करके एक पेशेंट है। इसका मेन हमने वमन किया था। पहले पेशेंट में मैंने वो विलिंग नहीं थी पेशेंट, इसलिए मैंने वमन नहीं किया। शमन चिकित्सा, डाइटरी चेंजेस, सूर्य नमस्कार, योगासना, इससे ही हमने उसका बैलेंस कर दिया। देन ये जो पेशेंट थी, ये स्टूडेंट है, और इसका बहुत ज्यादा हेतु ही लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ा हुआ था। फास्ट फूड ज्यादा था खाने में, तो वो सब कंसिडर करके उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके हम लोगों ने उसको वमन दिया। उसको अस्थमा भी था एक्चुअली, तो वमन के बाद उसका अस्थमा और पीसीओडी दोनों भी नील आए। आपको दोनों रिपोर्ट यहाँ पे रखे हैं। देन एक ये पेशेंट थी, ये मेनली इसका मेरे पास यूएसजी का रिपोर्ट नहीं है, उसने वो दिया भी नहीं मेरे पास। वो आई थी एक्चुअली कि उसका जो प्रोलैक्टिन लेवल था वो बढ़ा हुआ था, और उसका पीसीओएस की पेशेंट थी टिपिकल। पूरे उसको सिम्टम थे, वेट गेन था, हिरसुटिज्म था, एक्ने थे, सब था। लेकिन मैंने उसको यूएसजी ने, वो आई मेरे पास सीधा ये रिपोर्ट लेके आई, मैंने कुछ ट्रीटमेंट दी। मैंने उसको हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायरॉक्सिन मेरी कुछ नहीं लेने दिया। मेरी ट्रीटमेंट से ही, मैंने जो ट्रीटमेंट अभी आपको बोला, मेनली डाइटरी चेंजेस और योगा, और मेडिकेशन बहुत कम यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो खाओगे उसे, फूड भी दाए मेडिसिन एंड मेडिसिन भी दाए फूड, हिपोक्रेटिस का जो कहा वो सेंटेंस है वो पूरा फॉलो करके, क्योंकि स्वस्थ और उत्तर योगा है, तो वो मैं फॉलो करती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको डाइटरी चेंजेस, योगासना बताया, और बहुत मिनिमम मेडिसिन दी। उसमें मैंने नशे पे बहुत ज्यादा भर दिया, क्योंकि उसका जो प्रोलेक्टिन लेवल था वो बहुत हाई था। तो मेनली मुझे ऐसा लगा कि पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह हो सकता है। वो तो हमने नहीं किया, उसने कुछ टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट लेके आई, मेडिसिन दी, 1-1.5 महीने में उसके रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, तो हम लोगों ने, और उसके मेंसेस भी आ गए जो 4 महीने से नहीं आए थे। तो उस कंडीशन में मैंने बाकी कुछ यूज नहीं किया। Conclusion: Ayurveda offers a holistic and personalized approach to managing polycystic ovary syndrome. This ancient system of medicine emphasizes the balance of, हम लोग मेनली दोषास, कंस्टिट्यूशन, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन मीन्स प्रकृति, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट करते हैं। The integration of Ayurvedic principles into PCOS management addresses not only the symptoms but also the root causes of the condition. हम लोग अगर रूट कॉज को ही दूर करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, सक्सेस रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। The emphasis on holistic health, stress reduction and the mind body connection align, वो सबसे मेन है जो nowadays पूरा मिसिंग है। अगर हमारे पास पेशेंट आती है तो हम लोगों को पहले माइंड बॉडी कनेक्शन हर एक डिसीज में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो दिखेगा। आईबीएस में हो गया या कोई भी डिसऑर्डर अगर आप देखोगे, इंसोम्निया हो गया, तो इसमें माइंड बॉडी कनेक्शन अगर आप वो कंसिडर करके अगर पीसीओएस ट्रीट करते हो तो 101% आपको रिजल्ट आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल मैम, वेरी नाइस, रियली नाइस। आपने बहुत ही एकदम सिंपल वर्ड से और अपने दिल से इस प्रेजेंटेशन को बनाया था। ये आपके हर शब्द से मुझे पता रहा था कि आपने बहुत मन लगाकर और सच्चे दिल से इसको प्रेजेंट किया है, आपके जो भी रियल लाइफ के अनुभव है। तो बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा फ्रूटफुल सेशन रहा। और हमारे पास कुछ प्रश्न भी, मैं भी खुद एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि नींबू पानी, पहले तो लोग बहुत बोलते थे नींबू पानी पियो, नींबू पानी पियो, और लोगों ने इतना नींबू पानी पी, और अभी 1-2 साल से ऐसे सुनने में आ रहा है कि अस्थि क्षय हो रहा है, अवॉइड करिएगा, या जिनमें ऐसे नींबू पानी की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री मिली उनमें अस्थि क्षय बहुत ही ज्यादा। तो आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगी? यस मैम। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग कुछ भी अम्ल रस, हम लोग खाली पेट भी पानी नहीं बोलते हैं पेशेंट को पीने के लिए। पानी का विपाक भी अम्ल है, पहले बता देती हूँ। अगर अम्ल विपाकी है पानी तो वो एसिडिटी तो कम करेगा नहीं। हम लोग जो हाइपर एसिडिटी में बोलते हैं पेशेंट की, सुबह खाली पेट में पानी पीता हूँ, राइट।
क्योंकि एसिडिटी कम होती है। लेकिन वो पानी है, पानी का गुणधर्म आग बुझाना ही है। आप गर्म लो, ठंडा लो, कौन सा भी लो, वो अग्निमानदेय ही करेगा। ठीक है। तो वैसे नींबू पानी अगर आप लेते हो, पहले पानी का विपाक अम्ल है, उसमें भी आप अम्ल रस डाल रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी, वो बैलेंस करने के लिए कैल्शियम जो रहेगा बोन में का, वो लाएगी वहां पे और उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगी वो एसिड को। राइट। तो कैल्शियम जो रहेगा बोन में, तो अस्थिक्षय के लक्षण दिखने ही दिखने हैं आपको। इसलिए खाली पेट पानी भी नहीं पीना है, और घी के सॉरी, खाली पेट पानी भी नहीं किया पीना है, और लेमन जूस भी पानी में नहीं। देन और एक हनी, गर्म पानी में हनी डाल के लेते हैं। तो उससे भी रक्त दुष्टि के पेशेंट मैंने देखे हैं, मेनली हिमोराइड्स और अस्थमा, वो देखा है मैंने पेशेंट में। अगर वो पानी, गर्म पानी में अगर क्योंकि वो वैसे भी इनकॉम्पिटिबल फूड में आता है, मधु जो है वो शीतवीर्य का है, और गर्म पानी में अगर आप मधु लेते हो तो वो रक्त दुष्टि कर ही रहेगा। वैसे ही हम लोग अगर खाली पेट पानी या फिर अम्ल रस का कुछ डाल के अगर पानी भूखे पेट पीते हैं, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को जो बोन से खींच के लाएगा एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए। तो बॉडी की रिएक्शन अगर वैसी रहेगी तो उसमें अस्थिक्षय दिखता है। हम लोगों ने देखा है कि पित्त प्रकृति, मेनली जिनकी एसिडिटी बढ़ती है, उनमें क्या होता है कि मज्जा क्षय के लक्षण भी दिखते हैं। आप भ्रम देखोगे, अगर हाइपर एसिडिटी है, पेशेंट बोलता है कि सब घूम रहा है ऐसे लगता है मुझे, राइट। तो उसमें मज्जाक्षय, मेनली मज्जाक्षय अगर दिखता है, मीन्स क्या होता है, बॉडी वही कि अगर एसिडिक बॉडी, अगर एसिडिटी बढ़ी हुई है, बॉडी का नेचर अगर एसिडिक हुआ है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का जो बोन में का कैल्शियम है, वो महास्रोतस में लेके आएंगे, वो बैलेंस करने के लिए। यस मैम, यस, वेरी नाइस, यस। और आप नशे के लिए क्या यूज करती है जनरली फॉर पेशेंट्स एंड? मैम मेनली अनुतेल यूज करती हूँ, बट कोई पेशेंट बोलता है कि इरिटेशन होता है, फिर मैं सिंपल सा बोलती हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी यूज करो या तिल तेल यूज करो, आपको जो कंसिडर करना है वो करो, कुछ भी करो, लेकिन नस्य करो। और वो प्रतिमर्श टाइप में ही होता है, बहुत ज्यादा डोज में नहीं, क्योंकि पेशेंट सत्व इतना अच्छा नहीं रहा मैडम, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रमाण में मैंने देखा है। तो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट तो कर लेंगे टॉलरेट, क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं वो नहीं सुनते, तो फिर ठीक है, आप जो कर सकते हो वो करो। उसके अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल भी डाला तो भी चलेगा, या फिर तिल तेल लिया तो भी चलेगा। अच्छा, मतलब 6 ड्रॉप्स या 8 ड्रॉप्स ऐसे दिन में 2 बार? 2 ड्रॉप्स मैडम ओनली, 6 बस? ड्रॉप और 8 ड्रॉप भी पेशेंट टॉलरेट नहीं करता है। नहीं करता? प्रतिवर्ष नस्य जो बोलते हैं हम लोग, मैं प्रतिवर्ष देती हूँ, 2 टाइम देती हूँ। हमारे इसमें तो 14 काल बताए हैं प्रतिवर्ष के भी, लेकिन 2 टाइम्स भी अगर करते हैं तो सफिशियंट है। ओके ओके ओके, चलिए सभी, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। मैम सबको अनम्यूट कर दीजिए, शिल्पा हाँ, मैम। किया है, तो किया है, सम किया ऑफ है। देम, हाँ, सम ऑफ देम यस वांट यस टू यस, आस्क सम क्वेश्चंस। या श्योर, कर दिया है सभी को। आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं मैडम से, प्लीज। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर प्रीति गो मैम अहेड मैम। नमस्ते। नमस्ते। हेलो बोलिए। मैम, मेरा हाँ एक बोलिए। पेशेंट है, उनका मतलब पीसीओएस ही है, और उनका जो ओवेरियन वॉल्यूम है, एक ओवरी का 17 सीसी है और एक का 21 सीसी है मैम। और उनका मैंने एएमएच कराया, वो कंसीव के लिए ट्राई कर रहे थे, एएमएच कराया तो मैम हाई एएमएच है, 7.9 करके है मैम। तो इसमें क्या कर सकते हैं मैम? बाकी एफएसएच एलएच रेशियो ठीक है, प्रोलैक्टिन ठीक है मैम, और साइकिल बहुत जो वॉल्यूम, इरेगुलर है मतलब। आप ओवुलेशन के, सॉरी, एएमएच लेवल लो करने के लिए, या फिर आप जो मेन बल्कि ओवरीज है, इसकी वजह से एएमएच लेवल आपको जो दिख रहा है वो एक्सेस दिख रहा है, तो आप उसमें यस मैम, वरुण आदि कषाय यूज कर सकते हैं। वरुण आदि कषाय दिया है क्या आपने? यस मैम, वरुण आदि दिए है, और एक गंधर्व हस्तादि कषाय रहते हैं वो दिए हैं मैम। हाँ, लेकिन कितने दिन दिया? वरुण आदि कषाय से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे मैडम इसमें। मैम अभी जस्ट मतलब 1 वीक ही हुआ है स्टार्ट करे हुए, क्योंकि मुझे अभी वन यस, वीक पहले ही रिपोर्ट मिला था, तो मैं मतलब पूछ रही थी कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ मतलब थेरेपी वगैरह कुछ दे सकते हैं इसमें, पंचकर्मा जैसे, लेखन बस्ती टाइप कुछ और? मैडम धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती अगर दोगे ना तो भी उससे हो जाएगा कम। मैम उनका जो साइकिल है, उसमें साइकिल में मतलब बिना पिल्स लिए हुए, हार्मोनल पिल्स लिए हुए बिना पीरियड आते ही नहीं है, मतलब 6 मंथ हो, 7 मंथ हो,
मतलब अगर 1 ईयर भी मेडिसिन नहीं ली तो पीरियड आएंगे ही नहीं, ऐसा कंडीशन हो गया है अभी। यस मैम, आपको सुकुमार कषाय कंटिन्यू देना पड़ेगा। एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ती नहीं है इसका मतलब, क्योंकि 1 साल हो गया है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ रही है, यही रीजन है, राइट? यस मैम। हम्म। हाँ, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस क्यों नहीं बढ़ रही है वो देखिए आप, उनका डाइट मेनली चेंज कीजिए। ओके और मैम, जैसे आपका मैंने जो डाइट था इस टाइप से। यस, हाँ, अ, ऐसे पेशेंट में मेनली अवरोध जो रस धातु का है उनमें अभिसंधि, जैसे फर्मेंटेड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं ऐसे पेशेंट, या फिर दही का सेवन बहुत ज्यादा रहता है ऐसे पेशेंट में। हाँ मैम, फर्मेंटेड का है, मतलब साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं। यस, तो आप हाँ उनके अकॉर्डिंग ही मैंने जैसे बोला वरुणादि कषाय स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू दीजिए। धानवंतर तेल की मात्रा बस्ती अगर आप देते हो तो उससे भी कवर हो जाएगा मैम। ठीक है मैम। मैम मतलब पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि मैम कब मतलब नॉर्मल हो पाएगा पीरियड, ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन रहता है कि उनको मैं 6 महीना बोलती हूँ लेकिन फिर 6 मंथ करने के बाद भी पीरियड नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है मैम। यस, आप सुनिए अभी मेरा, मैंने यस मैम। एक पेशेंट था मेरा, अम, वो लड़की थी 18 ईयर्स की। वो एक्चुअली सब घूम के आए थे, वो टिपिकल पीसीओएस की पेशेंट नहीं थी, सिर्फ पीसीओडी था उसको, राइट? और वो बहुत कुछ साइक्लिकल पील्स वगैरह सब लेके आए थे, और वो लेने के बाद उसको पीरियड आते हैं, वो हेवी आते हैं और फिर बाद में नहीं रुकते। पित्त प्रकृति की पेशेंट थी, और उसको फिर पॉज लेके वो रुकाते थे। एलोपैथी का ऐसा पूरा साइकिल चल रहा था 1 साल से उसका, जब से आए वो इरेगुलर ही आए। तो ये सब एलोपैथी का साइकिल चल रहा था, और उसको किसी ने सजेस्ट किया, वो आए मेरे पास। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि 3 महीने में तो मैं इसको ठीक कर दूंगी, 6 महीने में तो इसका पीरियड रेगुलर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है मैडम। उसी दिन मैंने गाडगेट सर का सुबह का एक सेशन शुरू हुआ था संहिता वाचन का, और मुझे वही स्ट्राइक हुआ कि सर ने क्या बोला था, गाडगेट सर ने, कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अभी उसको पीरियड लाना ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की कि अभी आना ही चाहिए, 3 महीने 3 दिन 3 महीने में आना ही चाहिए। उसके लिए मैंने विद्या भी किया कि उसको आना ही चाहिए। लेकिन ये जो है वो थिकनेस जो है, फिर मैंने यूएसजी की तो एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ रही थी, और एंडोमेट्रियल थिकनेस जब तक ना बढ़े तब तक पीरियड आएंगे ही नहीं। तो वो जो अवरोध है, पहले आप आहार चेंज कीजिए, उसके बाद एक सुकुमार कषाय करके है, वो भी आप यूज कर सकते हो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए, और वो रेगुलराइज भी करेगा हार्मोन्स को भी। और अगर आपको जो बल्कि लग रहे हैं तो उसके लिए वरुणादि कषाय आप दे सकते हो। और ओके मैम। डाइटरी ओके। चेंजेस सबसे मेन है मैम। आप जब तक डाइटरी चेंजेस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैं करती हूँ फिर कभी नेक्स्ट में आपका सेशन होगा तो बताऊंगी आपको कैसा रहा पेशेंट का रिजल्ट। यस बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस। यस, और किसी का कुछ प्रश्न? सो प्लीज, आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली। मैम सुकुमार कषाय कितना देंगे? 15 ml 4 टाइम्स, विथ 4 टाइम्स वाटर बिफोर मील। जितनी भी मेडिसिन आप पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए कंसिडर करके दोगे तो वो पूरा अपान काल में ही देना है। मैडम हमारे आयुर्वेद में दही और तक्र हाँ का निषेध बताया गया है इवनिंग में। आप यस इवनिंग में डाइट चार्ट में तक्र दे रहे हैं। सर, ये इवनिंग इट्स नॉट इन इवनिंग, मेनली 4 बजे स्तंभक बोला होता है। है। हाँ जी। हाँ, 4 बजे जो बोला है ना मैंने, इवनिंग में नहीं, 6 बजे के बाद नहीं बोलेंगे सर। 4 बजे मैं देती हूँ पेशेंट को, लेकिन वो भी रोज नहीं। मैंने जैसे बोला कि एक आध दिन वो ले सकते हैं। एक मैडम इसमें जो आपने बोला है, आई एम नॉर्थ इंडियन तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। ये नाचनी रोटी किसको बोलते हैं मैडम? रागी। रागी। ओके। यस। ओके मैम। या फिर फिंगर माइलेट, वही सेम। मैडम लीन पीसीओडी होता है ना, यस, वो जल्दी कवर नहीं होता, ओबेस वाला हो जाता गीता जी बोलिए, डॉक्टर गीता। आपका आवाज क्लियर नहीं है डॉक्टर गीता जी।
लीन पीसीओडी होता है ना, बताओ ओबेस लीन पीसीओडी, पीसीओडी के बाद वाला हो जाता है। मैडम जो लीन पीसीओडी होता है ना, वो जल्दी, हाँ, वो जल्दी कवर नहीं होता, यस मैम, वो ओबेस जल्दी वाला हो कवर जाता है। नहीं होता। तो उसमें क्या हाँ करें? वो कवर नहीं। हाँ, आपको डाइटरी चेंजेस जो मैंने पहले बताया, योगा और डाइटरी चेंजेस वही रहेगा, नस्य रहेगा। इसीलिए नस्य मैंने इंक्लूड किया है कि मेनली जो लीन पीसीओएस रहता है, पीसीओएस में तो मेनली पेशेंट हेल्दी ही रहेगा, कफ वाला ही पेशेंट मिलता है, मैंने देखा है, जो सिंड्रोम लेके आता है पूरा। ठीक है। और पीसीओडी जो है वो जनरली अभी बहुत नॉर्मल साइकिल है, फिर भी बहुत लोगों में मैंने पीसीओडी देखा है। एक ऐसी ही इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी जो मैंने हमारे आयुर्वेद कॉलेज में देखी थी। वो लेडी थी कि उसका पीरियड जो था वो नॉर्मल था, फिर भी मैंने उसको कंसीव नहीं हो रहा था। जब हमने यूएसजी की तो तब उसके पीसीओडी चेंजेस दिखे और वो लीन पेशेंट थी एकदम। ठीक है। तो मैंने उसको, हम लोगों ने तब तो इतना कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि वो स्वास्थ्य में आई अलग काम से थी। हमने उसको करने के लिए यूएसजी बोला, वो डायग्नोसिस हो गया और मैंने उसको ऐसे ही पुष्पधन रस और फलग्रुत लेने के लिए बोला कि ओवुलेशन हो जाएगा। वो नेक्स्ट ही मंथ कंसीव करके, क्योंकि वो 2 इयर्स से कंसीव नहीं हो रही थी और डायग्नोसिस भी पता नहीं था क्योंकि पीरियड नॉर्मल थे। पीसीओडी था इसलिए उसका ओवुलेशन नहीं हो रहा था। तो पीसीओडी मैंने तो उसको अलग से कुछ नहीं दिया, लेकिन वहां पे हम लोग फलग्रुत यूज कर सकते हैं जो कि हार्मोन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो मैंने उसको पुष्पधन्वा और फलग्रुत दिया, उसमें ही वो कंसीव हो गई। ओके। एक प्रश्न मैम, एंडोमेट्रियल थिकनेस एलएचए एफएसएच अगर बड़ा हुआ होता है, सिर्फ एलएचए एफएसएच, तो उसको क्या दे सकते हैं उसको पेशेंट को? हम लोग रस धातु यूज कर सकते हैं, रस धातु का विचार करेंगे मैडम, क्योंकि ये सभी जो हार्मोन आते हैं वो रस के अंडर आते हैं। अगर आप रसपाचक देते हो तो उसमें रिजल्ट देंगे ही देंगे। और बाकी सिम्टम देखने पड़ेंगे, जैसे अग्निमांद्य है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन दिखेगा पेशेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी मीन्स हम लोग युक्ति व्यापार से सब चिकित्सा कर सकेंगे। अगर युक्ति लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग चिकित्सा बदलती जाएगी। नमस्कार मैम। Yes, एक हिर्सुटिज्म के लिए क्वेश्चन क्या है। कर सकते हैं? हिर्सुटिज्म मैम बहुत कॉमन है। हिर्सुटिज्म के लिए गुलबख्शी की बीज जो है, कुछ वैद्य बोलते हैं कि गुलबख्शी के बीज जो है वो उसका पेस्ट करके वो लगाते हैं हिर्सुटिज्म पे तक्र में। लेकिन मुझे एग्जैक्ट उसका कुछ भी पता नहीं है। वैसे टंकन भी यूज करते हैं हिर्सुटिज्म के लिए लगाने के लिए। बोरैक्स मेनली हम लोग जो टंकन बोलते हैं वो भी यूज करते हैं, लेकिन मैंने आज तक यूज किया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं उसके बारे में। लेकिन मैंने सुना है ये कि टंकन यूज करते हैं, या फिर लेजर तो है ही, वो तो करते ही करते हैं लोग। नमस्कार मैम। मैं एक पीजी स्टूडेंट हूँ और एक यूजी स्टूडेंट आई थी जिसको रिपोर्ट लेके आई थी कि पीसीओडी है करके। एक कंसल्टेंट ने उन्हें वमन के बजाय, मतलब वो पेशेंट विलिंग नहीं थी वमन के लिए, तो इसीलिए उन्होंने विरेचन, तो विरेचन के बाद 2 महीने उसके साइकिल रेगुलर थे। बट 3rd मंथ से क्या हुआ, तो फिर से उसे 2-3 मंथ्स तक उसका साइकिल नहीं आया था। और आफ्टर 3 मंथ जब उसका साइकिल आया तो वो फॉर 6 days साइकिल रेगुलर था। आफ्टर दैट शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ स्पॉटिंग टिल 30 to 45 days तक उसको यही प्रॉब्लम था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पित्त तो विशिएट हो गया है, लेकिन ये संप्राप्ति आगे क्या हुआ, लेकिन मुझे ये डाउट पूछना था आपको। यस, हाँ, पीसीओडी के लिए ये भी, जब मैंने पेशेंट को वमन के लिए मेनली विरेचन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऐसा कुछ वैद्यों का कहना है। और ये आपने जो बोला वो इसी से यही प्रूव हो रहा है कि विरेचन नहीं देना है। आप विरेचन कब दोगे? जब आपको पित्त दृष्टि दिखाई देगी। अगर आपको पित्त दृष्टि दिख ही नहीं रही है तो वो विशिएट करेगा। क्षय के कोई भी आप शोधन करते हो क्षय ही करेगा, राइट। पहले स्टार्टिंग में पाचन करने के बाद हम लोग अगर शोधन करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको वात प्रकोप दिखता ही दिखता है। तभी इसमें क्षय नहीं बोल रही मैं, लेकिन वात प्रकोप होता है शोधन के बाद। इसलिए हम लोग पूरा जो हमारा डाइट है उसके बाद का वो प्रॉपर होने के बाद नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो संप्राप्ति है, मे बी अगर वो उसको कंटिन्यू अगर स्पॉटिंग हो रही है तो यहाँ पे मेनली ईस्ट्रोजन का जो ओवुलेशन होता है, वो ईस्ट्रोजन अगर हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरोन स्टार्टिंग में
वहां पे ओव्यूलेशन होगा, राइट। तो वो जो एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हाई होते जाएगा, डीप होगा, उसके बाद ओव्यूलेशन होगा, सॉरी मेंसेस आएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो डीप ही है और वो मेंसेस स्टार्ट ही है। जब तक एस्ट्रोजन ना आए वो तब तक मेंसेस रुकने ही वाले नहीं है। एस्ट्रोजन अगर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ गया तो उसका प्रॉपर, और ये जो हार्मोन है मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अगर आप सोचेंगे तो ये मेनली पित्त के अंदर आते हैं। अब देखिए उनका पूरा मैकेनिज्म, पूरा वर्किंग अगर आप देखोगे तो वो हम लोग पित्त के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो ही ओव्यूलेशन होता है। मीन्स वहां पे उष्णता चाहिए होती है ओव्यूलेशन के लिए, हीट चाहिए होती है, वो एस्ट्रोजन बढ़ाता है, राइट। तो पित्त अगर विशेट हो गया तो ऑब्वियस है इसी की वजह से उनको एस्ट्रोजन की जो एस्ट्रोजन भी बढ़ नहीं रहा है, मीन्स डेफिशिएंट है, और प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है। इसकी वजह से उनका जो मेंसेस है वो कंटिन्यूस स्पॉटिंग कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग, मैंने जो भी जितने भी लेक्चर अटेंड किए सीनियर बच्चों के, उन सबका यही कहना है कि आप लोग विरेचन ना करो पीसीओएस में। मैंने बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुना, उनका कहना है कि विरेचन ना करो। ओके मैम। मैम तो इस स्पॉटिंग रुकने के लिए स्तंभन हाँ, चिकित्सा दिया गया था। दे सकते हैं। चंदनबला लाक्षादी की बस्ती भी दी है आपने, मात्रा बस्ती 40 ml की, तो वो रुक जाता है। देन दूर्वास वरस दे सकते हो आप, दूर्वास वरस का नस्य दे सकते हो आप, उससे भी वो रुक जाता है। ओके मैम। दूर्वास वरस से तो इजीली रुक जाएगा 2 ही दिन में। या फिर आप तंडुलोदक दे सकते हो, बहुत कुछ है, लज्जालू दे सकते हो, स्तंभन के लिए आप बहुत कुछ दे सकते हो। और बाद में हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको शतावरी देनी ही पड़ेगी कंटिन्यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम अगर पित्त प्रकृति का जो पेशेंट है, अगर मतलब पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो तब तो उसको क्लासिकल विरेचन हम दे सकते हैं ना, स्पेशली वंस अ ईयर उसको, जिस समय शरद ऋतु शरद में ऋतु में उसको आप दे सकते हो, लेकिन अगर सिम्टम कैसे है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। वही बोल रही मैं कि आप युक्ति से देखना पड़ेगा, हर बार पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करके हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब पर्सनलाइज्ड है एकदम, ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ा और वेरिएशन दे दिया, किसी को भी पकड़ा और यस, वमन हाँ दे वही दिया। बोले। तो पेशेंट इंडिविजुअलाइज, डिफर यस, होता हम है। लोग प्रकृति का विचार इसीलिए यस, प्रकृति का विचार इसीलिए करते हैं। वही बोल रही मैं कि हम लोग अगर बोलेंगे कि पीसीओएस में यही चिकित्सा है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन, ये दूर्वा स्वरस कितनी मात्रा में देना है? 15 ml तक दे सकते हो। 15-20 ml भी दिया तो उससे कुछ हार्म नहीं, वो जीवन ही मेनली रिजुवेनेट करता है, तो अच्छा ही है। शीत भी है, हम लोग इसीलिए उसका नस्य पुसमन में भी यूज करते हैं। दूर्वा स्वरस भी देते हैं हम लोग पुसमन करने के लिए, या फिर 14 डे के बाद हम लोग जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद दूर्वा का स्वरस, जिनका मेनली पित्त का मुझे अगर लगता है, कंसिडर करती हूँ मैं, अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे बहुत लोगों में ऐसा है कि गर्भस्थापना नहीं होती, तो गर्भस्थापक में आया ही है वो गन में दूर्वा, इसलिए मैं मोस्टली तब भी यूज करती हूँ। तो 15 ml तक आप दे सकते हो स्वरस। मैम बीडी सुबह शाम। या और अपान गले अगर देते हो तो बेटर। ओके, मैं मेरी एक पेशेंट थी पीसीओडी की, उसको ऐसी जैसे आप बता रहे थे ना, विरेचन नहीं देना है, वो दे दिया हमने, वजन तो उसका कम हो गया, लेकिन उसके बाद जो ब्लीडिंग उसको हुई, फिर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर क्षीर वाला वो चंदन वाला लाक्षादी की हमने बस्ती दी उसको, मैम 10 दिन 15 दिन तक बस्ती दी, वो बंद रहा। फिर 2 दिन बाद फिर से वो चालू हो गया ब्लीडिंग। दूर्वा स्वरस नस्य दिया हमने उसको मैम, तो उसका 2-3 दिन बंद रहा, फिर उसको सर्दी जुकाम हो गया, फिर वो चालू हो गया, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था मैम। तो अगर आप बोल रहे हो कि इसमें हार्मोनल जैसे कि शतावरी वगैरह चलाना है, तो इसके साथ में और क्या क्या हम चला सकते हैं मैम? मैम प्लीज गाइड करिए। आप अगर शीतलता का विचार करोगे तो गोदंती भस्म भी आप दे सकते हो, शतावरी कल्प या शतावरी भी प्लेन चूर्ण दे सकते हो। चंदन बला लाक्षादी की बस्ती जो है उससे स्टॉप होता ही होता है। मुझे तो भी अब तक ऐसा नहीं, पहले तो वो मेरे साथ में मैम बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब कि 15 दिन में कंटिन्यू देती रही, फिर मैंने उसे घट भी बोला देने के लिए, वो फिर 20 दिन तक, और जब मैं देती रहूं तब तक तो वो ठीक रहे, और जैसे ही वो बंद होए फिर 2-3 दिन बाद फिर से चालू हो जाए। मतलब मैं अच्छे से उस केस को लेके परेशान हो गई थी। और आपने सब कुछ अशोक चला यूज किया क्या बोल मैडम? बदरस, हाँ मैम, बोल बदरस, चंदन, आसव, अशोक, जितना था सब
चेंज कर करके ग्रहणी दृष्टि ये वो करते वक्त पता नहीं, समझ में नहीं आया कैसे वो केस बिगड़ गया मेरा। और फिर वो फाइनली वो बेचारी चली गई, मेरे साथ आते निकल गई। बहुत मुश्किल हो गया था उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करना। लेकिन उससे रुक जाता है मैम, मैंने देखा है, मैंने जैसे देखा है, लज्जालू भी आप यूज कर सकते हो, लज्जालू से भी रुक जाता है। लेकिन जो दोष कुछ है डॉक्टर स्तंभन करने से कुछ डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि कुछ डॉक्टर ने, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था कि इसको पूरे महीने 3 महीने कंटिन्यू देते रहो, चंदन बला लाक्षादी तेल की बस्ती। तो मैंने कहा 3 महीने कंटिन्यू, तो किसी आम को बढ़ता है नहीं मैडम, नहीं वो भी कंसिडर करना पड़ता है। किसी पेशेंट में अग्निमान्य दिखता है, अगर हम लोग कंटिन्यू मात्रा बस्ती देते हैं चंदन बला लाक्षादी की भी, तो उसमें भी हम लोगों को अग्निमान्य दिखता है। तो फिर मैम आम उसमें बढ़ता फिर है क्या पेशेंट। करेंगे? वो नींबू भी देंगे फिर क्या ऐसे में, अगर आम आप बढ़ता है या हम कोशिश कर रहे हैं तो? मैं क्या बोल रही हूँ कि तिक्तरस जैसे शतावरी हो गई, वो कंटिन्यू देना है आपको, वो पाचन करके फिर स्तंभन करेंगे। आप वैसे स्तंभन करने के लिए जाओगे तो वो सिम्टोमेटिक स्तंभन करेगा, लेकिन दोषों का जो पाचन है वो होगा ही नहीं। तो इसलिए तिक्तरस दीजिए पहले। दोषों का मीन्स रक्त दुष्टि है वहां पे मेनली। अगर वो ब्लीड हो रहा है तो हम लोग रक्त पित्त का अगर विचार करते हैं तो वासा भी उसमें अच्छा जाएगा। आपने वासा देके देखा है क्या? वो नहीं, वासा जो है वो दोष का पाचन करके फिर स्तंभन करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, वंडरफुल सेशन एंड मैम बहुत बहुत मेरा एक सवाल है मैम जी। यस यस मैम प्लीज, डॉक्टर लास्ट गीता, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यस हाँ जी हाँ मैडम जी को फिर से बुलाएंगे। मैम। यस एक प्लीज। पेशेंट है, स्ट्रिक्स ओवरीज है उसको और बाइकॉर्निएट यूट्रस है, PCOS तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बट हम उसमें कुछ कर सकते हैं मैम? पेशेंट ओरिज को क्या बोले विड्रॉल आपने? ब्लीडिंग होती है। ओरिज हाँ क्या जी, बोले? ओरिज का क्या बोले स्ट्रिक आपने? स्ट्रिक ओवरीज है। स्टिक अच्छा, हाँ जी हाँ। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉर्मिटी, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाइकॉर्निवेट यूट्रस में भी कंसीव होता है, लेकिन अगर ओवुलेशन नॉर्मल हो, बाकी सब नॉर्मल हो तो चलेगा। बाइकॉर्निवेट यूट्रस में अगर वहां पे इम्प्लांटेशन होता है तो ही ब्लीडिंग होता है, मीन्स अबॉर्शन होता है। ओके बाइकॉर्निवेट ओके यूट्रस में अगर, हाँ, जहाँ पे नॉच है वहां पे अगर इम्प्लांट होता है तो ही ब्लीडिंग हो जाता है, गर्भपात होता है। अदरवाइज उसका इतना रीडिंग, लेकिन अगर ओरिस नॉर्मल नहीं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी। बट पेशेंट को मैम हार्मोनल पिल्स लेने के बाद विड्रॉल ब्लीडिंग तो मीन्स हो रही है, पहले से ही वो ले रही थी पेशेंट के पास आई तो जी, तो अपने को इसमें कुछ करना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कर बट सकते। अगर चेक उन्होंने कराइए ना हार्मोनल उनका पिल्स, ओवुलेशन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, आप चेक कराइए ना प्रॉपर ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उनका। ठीक ओवरीज ओवुलेशन है तो जैसे अभी तो अल्ट्रासाउंड के लिए एक बार भेजा है और MRI भी पेशेंट करा के आई है, नहीं नहीं स्ट्रिक नहीं, ओवरीज है ओवुलेशन और स्टडी कराइए हिस्ट्री ना है नहीं, मैडम उसकी। उनके। ओवुलेशन के लिए देखिए पहले ना, वो तो ठीक है, ओके ओके इन्वेस्टिगेशंस की बात नहीं है। पहले ओवुलेशन ठीक से होता है कि वो देखिए, ऑब्जर्व करिए एंड देन जी गो जी फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट फॉर इन, ऐसे करके आप कर सकते हो। आप ओवम ओके की हेल्प भी देखिए, ओवुलेशन स्टडी प्रॉपर कराइए यस उनकी, उसके जी बाद में जी उनको ट्रीटमेंट के लिए सोचिए। यस 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 ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, मैम थैंक यू ये मैम। चलिए गुलबख्शी का बीज यानी गुलमोहर है क्या मराठी में? नहीं 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 नहीं, नहीं गुलबख्शी नहीं, गुलबख्शी क्या है? गुलबख्शी आप सर्च करो, नेट पे मिल जाएगा आपको। यस यस ओके मैम मैम। ये डिलेड पीरियड है, यस अगर डॉक्टर पीसीओडी वंदना के जी। पेशेंट को डिलेड पीरियड। हेलो, गुड इवनिंग वंदना ऑल। जी। यस अभी ये कंक्लूड करना होगा सेशन, बिकॉज दूसरा सेशन अलग अलग जगहों पे हो रहा होगा। और थैंक यू सो मच मैम, ठाकरे मैम। यस आपने बहुत ही सुंदर पूरा कंप्लीट एकदम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएशन टुवर्ड्स द डाइट चार्ट, निदान परिवर्जन, उसके बाद सारा ट्रीटमेंट आपने बहुत ही सुंदर बताया। वी ऑल हैव टू सी दैट कि ट्रीटमेंट जो है, सारे ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होते। तो आपने जो भी दवाएं, जो भी औषध बताए हैं, वो हम लोगों को सोच समझ के प्रकृति के अनुसार, उसकी हिस्ट्री टेकिंग के अनुसार ही करने होंगे। और शिल्पा मैम को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, जो वो इतनी अच्छी सीरीज करवाती हैं। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू आयुष दर्पण, थैंक यू मैम। यू विल हैव टू कम अगेन वंस अगेन, क्योंकि अभी सबके क्वेरीज खत्म नहीं हुए हैं। थैंक नहीं यू। नहीं, यस यस यस, डेफिनेटली वी विल कॉल मैडम अगेन
Thank you very much, all the participants, for your enthusiasm and asking various type of questions. So thank you, ma'am. Thank you. Namaste, sabhi ko. Yes, thank you, ma'am. Thank you.